Good morning, students. Today we will start chapter 9, Lines and Angles. In class 6, you learned about angles and their magnitude. Before going further, let us quickly recall what we have learned so far. First is, what is a line? In a line, there are no endpoints. कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन में आपके पास. बोथ साइड आपके पास एरो होता है. यू कैन एक्सटेंड इट अप टू एनी लिमिट. Next is, what is an angle? An angle is a figure formed by the two rays with a common endpoint. Here O is a common endpoint. OA and OB, these are the two rays, and the common endpoint O is also known as vertex. We can write down it as angle AOB and angle BOA. This is the angle, symbol of angle. And what is the magnitude of an angle? Magnitude of an angle is the measurement of the given angle. Let us here measurement of angle AOB is 30 degree. That is the magnitude of the given angle. Your next topic is pairs of angles. See in your book page number 83. First आपके पास है complementary angles. Two angles are said to be complementary if the sum of their measurement is 90 degree. In figure see here, angle AOB 30 degree and second angle BOC is 60 degree. Angle AOB plus angle BOC, sum of these two angle is 90 degree. Therefore, you can say these two angles are complementary angles. Let us see the second example in complementary angles. In the second example, suppose figure है आपके पास, इसमें one angle is here, आपके पास मैंने ले लिया है 40 डिग्री एंड द सेकेंड एंगल हमारे पास है 50 डिग्री. AOB एंड नेक्स्ट मेरे पास एंगल है PQR. नाउ सी हियर, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज आल्सो इक्वल टू 90 degree. It means you can say the given angles are complementary if the sum is equal to 90 degree. Next आपके पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें है आपके पास supplementary angles. In supplementary angles, two angles are said to be supplementary if two angles are said to be supplementary if the sum of the measure of two angles is equal to 180 degree. Now see here one example. That angle is equal to 45 degree. The another angle here I am taking 135 degree. The sum of these two angles, angle AOB plus angle BOD. Angle AOB is here 135 degree and angle BOD is equal to 45 degree. The sum of these two angles is 180 degree. Therefore, you can say these two angles are supplementary.
ये आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही फिगर में हो, आपके पास सेपरेट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में लिया था सेम इसमें आपके पास सेपरेट एंगल्स गिवन हो सकते हैं। तो आप उसमें बोल सकते हैं इफ़ द सम ऑफ दोज एंगल इज़ 180 डिग्री, यू कैन से दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आपके पास है एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स? Two angles with the same vertex, one arm in common and the other arm lying on the opposite side of the common arm are called adjacent angles. See one more time, two angles with the same vertex. मैं यहाँ पे सिंपल फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. You can see the definition from your book, page number 84. Angle AOB and angle BOC. Now see one more time definition. Two angles with the same vertex. Vertex आपके पास सेम है, O vertex है आपके पास इसमें. One arm in common here, OB arm आपके पास क्या है यहाँ पे, कॉमन है दोनों में. And the other arms lying on the opposite side of the common arm. OA and OC, both these two arms lying on the opposite side of OB. And that kind of angles are known as adjacent angles. You can write down here angle AOB and angle BOC are adjacent angles. Conditions क्या है adjacent angles की आपके पास? Listen one more time. One arm is common, OB आपके पास एक आर्म कॉमन होनी चाहिए दोनों में. देखो एंगल AOB and BOC, OB is here common arm, वर्टेक्स आपके पास कॉमन होना चाहिए, O इज कॉमन वर्टेक्स एंड द अदर टू जो आपके पास आर्म है वो इसके कॉमन आर्म के अपोजिट होगी. वन इज OA, अनदर वन इज OC. दैट काइंड ऑफ एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर में रीकैप एक्सरसाइज है. डू द रीकैप एक्सरसाइज योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है. डू इट इन योर बुक. सेकेंड क्वेश्चन आपके पास ड्रॉ एंड क्लासीफाई द फ्लोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और कंप्लीट. आप अपने आप कर सकते हैं, ड्रॉ करना सबको आता है. यू कैन ड्रॉ दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. मीन्स आप डी से ड्रॉ कर लेंगे और मेंशन कर देंगे. इसमें आपको एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है. एक्यूट एंगल्स मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. व्हाट आर द एक्यूट एंगल्स? दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री नोन एज एक्यूट एंगल्स. Obtuse angles, those angles which are more than 90 degree but less than 180 degree. See here question number 2. Obtuse angles which are more than 90 degree and less than 180 degree known as obtuse angles. And reflex angles more than 180 degree and less than 360 degree. Complete angle is 360 degree angle is known as the complete angle. इसमें आपके पास A part है 75 degree, that is a acute angle. 15 डिग्री 90 से लेस है, दैट इज अगेन एक्यूट. 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल. 90 डिग्री को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? राइट एंगल. 360 डिग्री कंप्लीट एंगल. 210 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल. 20 डिग्री एक्यूट. 120 डिग्री आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है बिकॉज दैट इज मोर देन 90. 221 मोर देन 180 है तो आपके पास ये भी क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया. तो फर्स्ट पार्ट आपने इसका अपने बुक में ही करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है. रिकैप में नेम द एंगल्स शोन इन द गिवन फिगर एंड क्लासीफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और कंप्लीट. नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 3. आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 आप चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 85. नाउ सी हेयर इन दिस फिगर मेंशन करना है आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड कंप्लीट. नाउ सी हेयर एंगल ACD दैट इज एक्यूट एंगल. अनदर एंगल इज DCB दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. एंड कंप्लीट एंगल, हेयर इज नो कंप्लीट एंगल. यहाँ पे आपके पास कोई कंप्लीट एंगल नहीं है. वन मोर एंगल इज देयर, एंगल ACB दैट इज अ स्ट्रेट एंगल. ACB आपके पास कौन सा इसमें? स्ट्रेट एंगल है. कंप्लीट एंगल आपके पास नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 अगेन डू इट योर सेल्फ. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर 85 पर पेयर्स ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट ही पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपके पास है. फर्स्ट आपके पास है लीनियर पेयर.
linear pair already learnt in class 6 also. Two adjacent supplementary angles form a linear pair. Two adjacent supplementary angles form a linear pair. For example, see here in the figure, such kind of angles known as linear pair 60 degree, and another one angle here I will take 120 degree, POQR. Angle POQ plus angle QOR 120 plus 60 degree equal to 120 degree. Now see here, in a linear pair sometimes given angles supplementary होते हैं आपके पास, but those are not the linear pairs. Linear pairs नहीं होते हैं. Now how you can decide कि given angles are linear pair or not the linear pairs? It depends on, just check it out the figure. आपके पास one line straight line होनी चाहिए और उसके ऊपर आपके पास one ray stand करनी चाहिए. In only that condition you can say the given angles are linear pair, means वो adjacent angles भी होने चाहिए. And what is the condition of adjacent angles? One common arm, vertex common, and other two rays lies on the opposite side of the common arm. Only then you can say the given angles are linear pair. Linear pair के लिए must क्या है आपके पास कि adjacent angle होने must हैं. Only then you can say the given angles are linear pair. नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपने 6th में भी ऑलरेडी किया हुआ है. लेट अस सी वन मोर टाइम हियर. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, when two lines intersect each other at a point, the two pair of angles formed without any common arm are called vertically opposite angles. See the definition from your book, page number 85. हमने यहाँ पे ले लिया है आपके पास ए बी एंड पी क्यू. दीज आर द टू गिवन लाइंस एंड दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं. नाउ हेयर सी हेयर, दीज आर द अपोजिट एंगल्स. दैट एंगल इज़ 1 एंड दिस वन इज़ एंगल 2. हेयर आई विल टेक एंगल 3 एंड एंगल 4. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. आपके पास बुक में इसका प्रूफ गिवन है. मैं एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. नाउ सी हियर इन द गिवन फिगर, line AB, on line AB OP rays stand on it. Therefore you can say angle 1 and angle 3. Angle 1 plus angle 3 equal to 180 डिग्री. रीज़न क्या देंगे? बिकॉज आपके पास है लीनियर पेयर. आपके पास ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे. सिमिलरली यू कैन टेक अनदर वन. मैंने यहाँ पे लिया 1 + 3. नेक्स्ट मैं आपके पास ले रही हूँ पी क्यू. आपके पास लाइन है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं. व्हेन ए बी इज अ लाइन एंड रे ओ पी स्टैंड ऑन इट.
नेक्स्ट हम लेंगे व्हेन पी क्यू is a line and OB, ray OB stand on it, then angle 3 plus angle 2 180 डिग्री. सी हेयर इन द फिगर में आप देखेंगे. नेक्स्ट मैंने ये लाइन ली है आपके पास और ये ओ बी इसके ऊपर स्टैंड कर रही है. द सम ऑफ दीज टू एंगल्स 3 + 2 180 डिग्री. बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है. आप सेम यहाँ पे लिखेंगे रीजन लीनियर पेयर. नेक्स्ट आपके पास टू इक्वेशंस बन गई हैं. फर्स्ट आपके पास थी दिस वन एंड सेकेंड हमने ये बनाई है अभी आपके पास. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन. सिंस बोथ द इक्वेशन हैव द सेम वैल्यू 180 डिग्री 180 डिग्री सेम वैल्यू है, तो हेयर यू कैन राइट डाउन 1 + 3 = 3 + 2. सिंस बोथ द वैल्यूज आर इक्वल यू कैन राइट डाउन एंगल 1 + एंगल 1 + एंगल 3 = नेक्स्ट हमारे पास था एंगल 3 + एंगल 2. एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा. एंगल 1 = एंगल 2. तो फर्स्ट हमने ये प्रूफ कर दिया आपके पास. आपको यही प्रूफ करना था. आपको क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 = एंगल 2 हमने प्रूफ कर दिया है. तो आप यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड. सिमिलरली यू कैन प्रूव द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ. ट्राई टू डू इट योर सेल्फ. सेकेंड पार्ट में आप क्या लेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लेंगे एंगल 1 + 4. सेकेंड टाइम आपने पी क्यू लाइन लेनी है एंड ओ ए स्टैंड ऑन इट. एंगल 1 + 4 180 डिग्री. बिकॉज आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है. सेकेंड टाइम हम लेंगे सेम यहाँ पे ए बी आप लाइन लेंगे, ओ पी स्टैंड ऑन इट. तो 1 + 3 180 डिग्री सेम लीनियर पेयर एंड देन यू कैन जस्ट मेक दैम इक्वल. 1 + 3 = 1 + 4. 1 कैंसिल हो जाएगा. एंगल 3 = एंगल 4 आपके पास आ जाएगा फॉर द सेकेंड प्रूफ. आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारा हो गया है. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आपका, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है स्टार्ट है. एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 9.1. फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक, देन डू द सोल्यूशन. 43 डिग्री 56 डिग्री. First we will add them and check it out whether their sum is equal to 90 degree or not. That is equal to 99 degree. Therefore you can write down given angles are not complementary. Given angles are not complementary. नेक्स्ट मैं आपके लिए एक डी पार्ट कर रही हूँ इसका. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ इन फेयर नोटबुक. 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. 45 + 45 = 90 डिग्री. येस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. येस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सेम है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए पार्ट देखेंगे आप. (56 डिग्री एंड 34 डिग्री. 56 + 34 that is equal to 90 degree.
देयरफॉर आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री चाहिए. तो सम ऑफ दीज टू एंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. राइट डाउन नो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट मैं आपके लिए पार्ट कर रही हूँ इसमें. नेक्स्ट आपका मैं डी पार्ट कर रही हूँ. 110 डिग्री एंड 70 डिग्री. चेक आउट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स that is equal to 180 degree. Now write down yes they are supplementary. Yes they are supplementary angles. Next आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एंगल्स विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ itself. एंड द बी पार्ट है फाइंड द एंगल विच इज द सप्लीमेंट ऑफ itself. क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट. Here I am doing only the A part. B part you have to do it yourself. Let the angle be x degree. Complement of x is equal to, complement कैसे, how you can find out the complement of the given angle. We can subtract it from the 90. 90 में से आप उसको subtract कर लेंगे. 90 minus x. Complement of x is equal to 90 minus x. Since both the angles are complement of itself, therefore according to question you can write down x equal to 90 minus x. It means both angles equal होने चाहिए. x को अगर आप shift करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करेंगे x प्लस एक्स माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा. 90 विल रिमेन हेयर. 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 45 डिग्री. यू कैन चेक इट आउट. 90 माइनस 45 इज अगेन 45. देयरफॉर 45 इज द complement of 45 is 45. Similarly, you can do the supplement of itself. Do not do that question directly. Number of students do that kind of question directly. Write down simple answer 45 degree. कंसिडर नहीं किया जाएगा. आपको सिंपल इसका सोल्यूशन करके आपको मुझे देना है. सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी आपने ऐसे ही करना है. लेट करेंगे, लेट द सप्लीमेंट, लेट द एंगल बी x एंड सप्लीमेंट ऑफ x इज हेयर 180 माइनस एक्स हो जाएगा. 90 के रिप्लेस करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 180 माइनस एक्स. एक्स उधर जाकर आपके पास शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. 2x इक्वल टू 180 एंड देन x इज इक्वल टू 90. 90 आपका आंसर आएगा. डू द बी पार्ट योर सेल्फ. And next we will do question number 4 in the next class. That's all for today, and we will discuss your queries on Google Meet. Thank you.